بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس عالیہ مداریہ سلسلے کی یہاں پر بانی، یہاں پر بیٹھے سبھی معزز اور خصوصاً میں یہاں پر تشریف فرما جناب ضیاء الحق مرحوم بھائی کے والد صاحب کو بہت بہت دل سے خیر مقدم اور ان کا استقبال کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے اس وقت میں سے کچھ وقت نکال کر قوم اور ملت کے لیے دیا۔ یہاں پر منچ پر تشریف فرما میرے جو ہمارے سرپرست ہیں جناب سلطان اصلاحی صاحب، یہاں پر موجود جناب ایکس منسٹر ہمارے جو قابل احترام ہیں، میں نام لینے میں تھوڑا گریز کروں گی کیونکہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں سبھی لوگ، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم عرض کرتی ہوں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، میں خدا کے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ آج اس عالیہ مداریہ سلسلے کی کانفرنس کے پہ موجود یہاں سبھی میرے بھائیوں اور یہاں پر بیٹھی ہیں میری ایک بہن بھی ہیں، جو خوشی ہو رہی ہے کہ عورتوں کا مقام کہیں نہ کہیں تو ہمارا ہے ہی۔ آپ سب لوگوں سے یہ گزارش اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں یہاں پر آج جو آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور جو مجھے موقع بھی ملا ہے اپنی بات کہنے کا، تو شاید ٹائم کی لمیٹیشن میرے لیے نہیں تھی، میں سن نہیں پائی، ایک فون آیا ہوا تھا۔ اگر میرا ٹائم اوور ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گی، شاید ٹائم زیادہ ہو جائے، کیونکہ جو ہمارے دل میں درد ہے، ہم لوگوں کے دل میں جو ایک کسک ہے اس بات کو لے کر کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ مظلوم ہیں، ہم لوگ مجبور ہیں، تو میں پتہ نہیں، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں کبھی یہ نہیں مانتی کہ ہم غریب ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ارے ہم کیوں مظلوم ہیں، ہم کیوں مجبور ہیں؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اتنی اپنے آپ کو اتنا نیچا اور کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے حق کہنے کے لیے ہمیں کوئی کہیں جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ ڈائس آج اس بات کے لیے آپ کو یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ میں بہت بڑے مقام پہ قابض نہیں ہوں، میں بہت ادنا سی ایک شخصیت ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ کبھی بچپن میں یہ دعا ضرور کرتی تھی کہ اللہ تو مجھے کبھی اس مقام پہ پہنچا دے کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، اے اللہ تو مجھے کبھی اس مقام پہ پہنچا دے کہ میں مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ باخدا اللہ اس بات کو ابھی بھی سن رہا ہے اور تب بھی خدا نے سنا تھا۔ میں بھی پالیٹکس میں ہوں لیکن یہ منچ پہ آج بحیثیت پولیٹیشین کے نہیں آئی ہوں، میں صرف اس فارم کے لیے اس منچ پہ ہوں، اور میں نے یہ بھی ایک بات رکھی تھی کہ یہ منچ جو ہے یہ صرف الویوں کا منچ ہے، یہ غریب مظلوم مجبوروں کا منچ ہے، یہ کسی نیتا کا منچ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے بحیثیت نیتا یہاں بلانا چاہتے ہیں تو میں نے اس بات کو ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گی اور میں نہیں جاتی ہوں۔ میں صرف اور صرف غریب مظلوم مجبوروں کی مدد کے لیے جس لائق بھی ہوں تیار رہی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی علی گڑھ میں 16-17 اکتوبر کو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بہت سارے ہمارے پوائنٹس تھے، بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے رکھی تھی۔ ہمارا درد، ہماری کسک اور ہماری بات یہی ہے کہ ہم کمزور کمزور کمزور، لیکن پتہ نہیں، میں کبھی نہیں مانتی، عورت ہونے کے بعد بھی میں یہ نہیں مانتی کہ کمزوری کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اس امتی کی امت میں پیدا کر کے بھیجا ہے جنہوں نے اپنی امت کو بخشوانے کا وعدہ لیا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دل میں اگر جذبہ ہے اور جنون ہے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہو سکتا، ہر کام کی راہ خود بخود ہموار ہو جاتی ہے۔ اے جذبہ دل گر ہم چاہیں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر ہم چاہیں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلیں اور سامنے منزل آ جائے۔ پھر ہم آخر کیوں اس بات کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم کیوں کمتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو
कुछ करने के लिए कोई आगे ही नहीं आने देता। अभी फायद साहब भी बहुत अच्छी बात कहने जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। वाकई वो बहुत अच्छी मिसाल देने जा रहे थे कि हमसे भी जो बद से बदतर कौम थी, आज वो हमारे ऊपर काबिज है। वो क्यों काबिज है? वो इसलिए काबिज है कि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी दिखाकर अपनी क्वालिटी पैदा की है। उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया है, इसलिए वो आज हमारा कबीला आज भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करता है। मुझे कोई गुरेज नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ अपने दिल की बात जानती हूँ और अल्लाह भी इस बात को जानता है। अरे आप लोग मंजिल के लिए चलिए तो सही। हम सब एक साथ मिलकर वो माप तैयार कर सकते हैं, वो कसक और कसक को दूर करके एक कशिश पैदा कर सकते हैं जो हमारे हक के लिए, उसूलों के लिए लड़ाई करने की बात। हमने भी फरमाया है कि आप जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना भी उतना ही गुनाह है जितना जुल्म करना गुनाह है। तो हम फिर ये जुल्म ही तो सह रहे हैं। हम ये गरीब हैं, हमें वहां ऑफिस में जाने नहीं दिया जाएगा, हमारी बात हमसे कहने के लिए हमें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। आज यहाँ पर मौजूद जनाब जियाउल हक साहब के फादर भी यहाँ मौजूद हैं। इनका दिल का दर्द हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनका गम हम बांट नहीं सकते। तो मैं आपसे, शमशुल हक साहब से बहैसियत एक बालिग होने के, एक बेटी होने की हैसियत से कहना चाहती हूँ कि आपकी इस बेटी की जरूरत अगर आपको मेरे मरहूम भाई की शहादत के लिए कहीं भी पड़े तो ये बहन अपनी जान की भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। दर्द वही जानता है कि जिसने दर्द सहे होते हैं। दर्द उसी को होता है जिसको तकलीफ होती है। इनका दर्द मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि किसी को खोना कितना बड़ा दर्द होता है। जिसने कुछ खोया होता है वही उसके दर्द और तकलीफ को समझ सकता है। आप अपनी बात को उठाइए। शमशुल हक साहब, मैं कहना चाहती हूँ अपनी बात के लिए आप मुझे जहाँ चाहें इस्तेमाल करिए, मुझे यूज करिए, लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें यूज करिए, हमें मिसयूज मत करिए। आज सारे लोग दौरान इलेक्शन हमारे पास इसलिए आते हैं कि हम अलवी हैं, हम गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। गरीब तो कोई भी हो सकता है, गरीब पठान भी हो सकते हैं, गरीब सैयद भी हो सकते हैं, गरीब कुरैशी भी हो सकते हैं। तमाम कौम और मिल्लत अल्लाह की ही बनाई हुई है, गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन हम खुद ही तो शाना बशाना चलते नहीं हैं, फिर हम एक दूसरे पे क्रिटिसाइज एक दूसरे को करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो वो आया था, उसने बोला कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म कर देंगे अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बात रखने का मौका मिला है तो कहना चाहूंगी कि हम जो भी कदम उठाएं एक साथ मिलकर उठाएं, अपनी यूनिटी तो दिखाएं। हम लोग ये तो दिखाएं कि हम अगर आपको वोट देते हैं तो हम आपको वोट देके अपने हक के लिए आपसे भीख नहीं मांग रहे। हमने आपको कुछ दिया है तो इसलिए नहीं दिया, आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है। ये क्यों नहीं कह सकते हम लोग? हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि हमारा आज तक कोई रहबर नहीं है। मुसलमान कौम का कोई रहबर न पैदा हुआ और न है, और जो हैं भी उनके लिए वही बात है कि हमारे ऊपर तो ऐसे लोग मुलव्विस हैं कि जिनको जो हमारी हैसियत, हमारी औकात बस यही समझते हैं कि हम लोग बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के पॉइंट्स जो हैं वो आलमबरदार शाहमदार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी एक हमारे पास पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश तो करें, आप लोग हिम्मत तो करें। जरूरी नहीं है, अभी एक साहब फरमा रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हम बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएं, हम छोटे छोटे इदारों में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहैसियत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, काफी अल्लाह का करम है कि जो लोग ऐसे हैं कि जो किसी की मदद कर सकते हैं, गरीबों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें
इंडिकेट कर सकते हैं हमारे घरों की बच्चियां, और खास तौर से ये भी कहना चाहती हूँ कि औरत हूँ तो आज भी औरत को अल्लाह ने इस्लाम में तो बुलंद मर्तबा दिया है, मर्द की बराबर दर्जा दिया है, लेकिन आज भी हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि हम चार दीवारी के बीच में रहें और खानदान के चिरागों को ही हम आगे बढ़ाएं, उनकी ही देखभाल करें। जब हमारी बात आती है तो हमें ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा हक नहीं है, तुम औरत हो, तुम बैठ जाओ, ये मर्द फैसले करेंगे। तो ये कहाँ का एक इस्लाम है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक बात वाज़ेह है कि औरत का दर्जा भी अल्लाह ने इस्लाम में बराबर का दिया है, तो फिर हम कहाँ से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब औरत ने अपने आप को कमतर समझा है, कब हर काम औरत ने बेखौफ व खतर किया है, हर काम औरत ने बेखौफ व खतर किया है, न डर किया है बल्कि हुनर किया है। औरत नाम है जिंदगानी का, औरत नाम है निगहबानी का, औरत नाम है जो बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसका नाम भी औरत है। औरत ने आज तक कुर्बानियां दी हैं, मर्दों से कम कुर्बानी कभी औरत की रही नहीं है। मैं ज्यादा अगर बोल रही हूँ तो माजरत चाहती हूँ इस्लाई साहब, अगर वक्त और दे दिया जाए तो कुछ और कहूँ या अपनी बात को यही खत्म करूँ, क्योंकि मुकर्रीन और भी बहुत हैं, मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ तमन्ना है मगर वक्त की कमी की वजह से रह जाती हूँ हमेशा। हाँ, ये पॉइंट्स जो हैं मैं उन पे जरूर तवज्जो देना चाहूंगी। एक ये बात भी जरूर कहना चाहूंगी कि ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये जलसे मुनक़िद किए जाते हैं, यहाँ हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, यहाँ सुनते हैं हम एक दूसरे को, हम एक दूसरे की बात पे गौर व फिक्र भी करते हैं। जब मीटिंग कहीं भी हो रही हो उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो अपने कामों में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर फिर मेरी एक बात है, ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अमल जब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बकौल किसी शायर के अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, क्योंकि जब हम किसी बात पे अमल ही नहीं करेंगे, उस बात को लेकर हम कभी सीरियस ही नहीं होंगे, बस मीटिंगें कर लेंगे और ये कहेंगे कि हम, अरे कोई भी गवर्नमेंट का कोई सीएम या कोई पीएम क्या औकात रखता है हमारे सामने। आज हम 100 लोग भी जाकर अगर अखिलेश यादव के जाकर वहां के उसका घिराव करेंगे तो उसकी औकात नहीं है कि वो हमसे एक अल्फाज भी बोल सके। लेकिन हमें तो इतना मादा होना चाहिए, हमें तो इतनी ताकत और कुव्वत होनी चाहिए कि अपनी बात को रखने के लिए हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद सभी अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से कि तालीम बहुत बड़ा सरमाया है। अभी निदा ने भी यहाँ पर ये बात बोली थी कि तालीम की बेस पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सरवरे कायनात ने भी ये फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो जाओ, कोई गुरेज मत करो। वो उस वक्त की पेशन गोइयां आज हमारे सामने हैं, वो पेशन गोइयां नहीं थी, वो हमारे लिए रास्ते हमवार करने के लिए जब वहियां खुदा ने नाजिल की थी, जिन पे हमें आज चलना है। तो यहाँ पर मौजूद अपने भाइयों को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि अपने घर के में जो मेरी बहनें ख्वातीन हैं उनको उनके हक के लिए कभी महरूम मत करिए। उनके भी जज्बे हैं, उनके भी कुछ आपसे कुछ ताल्लुक है, उनके भी कुछ अरमान होते हैं। उनको ये मत समझिए कि वो सिर्फ आपकी एक गुलाम है या आपके घर को, आपकी फैमिली को चलाने वाली है। उनका भी एक अपना मर्तबा है। हमारे बीच में हमारे हुजूर की बेटियों ने हुजूर ने अपनी बेटियों को कितने आला मकाम दिए। जब सरकार दो आलम अपनी बेटियों को इतना चाहते थे तो हम अपने घर की बच्चियों को और अपनी बहनों को और बेटियों को क्यों नहीं चाह सकते। मैं यही बात के साथ यहाँ पर सभी मौजूद टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि क्वांटिटी भी है और यहाँ पर क्वालिटी भी है। ये अल्लाह का करम है। आप सब लोग
यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बहुत दूर दराज से आए हैं, अपना कीमती वक्त दिया है। तो ये अलविया मदारिया सिलसिला चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इकट्ठा होकर एक जगह आकर अपने हक के लिए, अपने उसूलों के लिए लड़िए। उस लड़ाई लड़िए, उसूलों की लड़ाई मत लड़िए फजूलों की, ये मेरी गुजारिश है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। और आप उनका जहाँ मसला आएगा वहाँ आपकी बहन आपके साथ होगी इंशाअल्लाह, शाना बशाना, बहैसियत एक कौम के, बहैसियत लीडर के नहीं। अपनी बात को खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज।